Now we start with the another very important chapter. Basically बहुत बड़ी यूनिट है ये और नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर. कई सारे पार्ट में डिवाइड है. इसमें पहला एक सॉलिड आ जाएगा और सॉलिड में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी. फिर हाइड्रोस्टैटिक्स आ जाएगा, लिक्विड इज एट रेस्ट डिस्कस करेंगे, उसमें प्रेशर एंड सरफेस टेंशन आ जाएगा. फिर हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगी जिसमें विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे. फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सॉलिड से और उसमें डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी. मतलब जानो व्हाट इज इलास्टिसिटी. Now, after removal of deforming force, if body regain its original configuration, this property known as elasticity, and bodies are said to be elastic bodies. After removal of deforming force, if body regain its original configuration, this property known as elasticity, and the bodies are said to be elastic bodies. ठीक. मतलब जानो what is deforming force. Deforming force which can deform the body. It is also equal magnitude of restoring force. डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स. अगर बॉडी इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे. डिफॉर्मिंग एंड रेस्टोरिंग फोर्स. फोर्स विच कैन डिफॉर्म द बॉडी, ठीक है, चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी, नॉन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक. नाउ अगर हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज की बात करें, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, bodies are said to be perfectly elastic bodies if they regain its original configuration completely after removal of deforming force immediately. Means bodies are said to be perfectly elastic bodies if they regain its original configuration immediately after removal of deforming force known as perfectly elastic bodies. Now perfectly plastic bodies जानो. After removal of deforming force, body can't regain its original configuration known as परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज. ठीक. तो इलास्टिसिटी समझ गए होगे. आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली, नॉन एज इलास्टिसिटी. ठीक. और अब इसमें हम लोग कुछ एक टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेस. तो अब स्ट्रेस डिस्कस करते हैं हम लोग. Stress is equals to applied force or external force upon area. It is also equals to deforming force upon area. It is also equals to restoring force upon area.
Clear? So stress means force upon area, simply external force upon area, deforming force upon area, or it is also equals to restoring force upon area. Now unit. Its unit is Newton per meter square. Newton per meter square, or it is known as Pascal. Now, dimensional formula. ml minus 1, t minus 2. It is the dimensional formula of stress. Clear? Now discuss about the types of stress. We discuss about the types of stress. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस. If the force acting normal to the surface, normal to the cross-sectional area, known as normal stress. If the force acting normal to the cross-sectional part of the body, known as normal stress. So normal stress goes to normal force upon एरिया. और जानो इसके बारे में, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में और भी जानो. इसके कुछ एक पार्ट्स भी हमने बताए हुए हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस. अब ये लेके चल रहे हैं हम लोग. If we applied the force and length of the body increases in the direction of force, then it is called tensile stress. For example, is a cylindrical body. Here we applied the force and it increases in the direction of force, then it is called tensile stress. Clear? फॉर्मूला तो वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया और नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा. इफ द, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, वो वायर को आपने एनी हाउ खींचा उसको, तो उसकी लेंथ अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. इस तरह देखें आप, तो ये कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक, ऐसे देखो, जैसे ये देखें आप, ये स्केल भी है इसके, देखो अब इस तरह खींच रहे हैं. अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. फिर से देखो आप, अब इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में. अभी आप रीडिंग देख लो, फिर देखो आप, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. क्लियर? नाउ अब इसका सेकंड पार्ट देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेस. Compressive stress. If a body compress in the direction of applied force, again like this, and the direction of force, it decreases, compresses. That is known as compressive stress.
ऐसी देख लो। अभी आप देखो इसकी रीडिंग दिख रही होगी आपको रीडिंग। अब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कंप्रेस हो रही है, सो इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये दोनों ही कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि लेंथ के ऊपर फर्क पड़ा, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर? और अब है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, if we applied the force on a body uniformly in all directions, if volume decreases, basically under the effect of pressure of the liquid, that's what known as hydraulic stress। पानी की दबाव के कारण अगर वो बॉडी कंप्रेस हो जाए, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, जैसे सपोज एक बॉडी है और इस पे चारों तरफ से फोर्स लगा दिया, उसका वॉल्यूम V था, अब ये हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक, इस तरह देखें, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। जैसे एक बॉल है, ठीक है, और ये 3 डायमेंशन होगी तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। अगर हम इसको अब ये आप देखो इसको, अब इसको हर एक डायरेक्शन में कर रहे हैं अप्लाई, देखो डिक्रीज हो रहा वॉल्यूम, पहले इतना था, अब इसको हर एक डायरेक्शन से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्रेस हो रहा है, देखो ये, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बेसिकली वैसे तो वाटर के कारण होता है, लेकिन यहाँ तो पानी के न होके हम ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट लेके चल रहे हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये सेकंड पार्ट हो जाता है, ये सारे पार्ट थे टेंसाइल स्ट्रेस के पार्ट थे, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। उसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस, शेप चेंज होगी बस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों कहते हैं? कि टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, वो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया था, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लग रहा है, देखो नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस के केसेस थे। और अब टेंजेंशियल स्ट्रेस, ए फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस, ये हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये कोई कार्टून है, और ये फिक्स कर दिया, अब फोर्स आपने ऐसे लगाया तो क्या होगा? ये इस तरह हो जाएगा, शेप चेंज होगी यूं, इसे कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस तरह देखें आप, जैसे ये, ठीक है, अभी आप देखो इसको, अब मैंने फोर्स लगाया तो शेप चेंज, हटा दिया तो वापस आ गई, शेप चेंज हो रही है, ये पार्ट चलो फिक्स हो गया, भारी इसलिए लिए मैंने, हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया यूं, देखो अभी ये था सेम और यूं हो जाएगा, देखो दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर? ये पार्ट थे स्ट्रेस के। क्लियर? स्ट्रेस होता क्या है बेसिकली? इट इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। फिर उसके हमने पार्ट्स डिस्कस किए। बेसिकली दो ही पार्ट हैं, नॉर्मल स्ट्रेस
एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के कुछ एक पार्ट हो गए। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, परमानेंट एरिया नॉन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और इसके कई पार्ट हो गए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, ठीक है, और उसके सब पार्ट हो गए कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, नहीं टेंसाइल, ये नॉर्मल स्ट्रेस की पार्ट हो गई। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है अगर किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। अगर उसकी लेंथ कंप्रेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। चूंकि लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला करते हैं। फिर एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, अगर हम फोर्स लगाएं और अंडर द इफेक्ट ऑफ वाटर फोर्स ए वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो हमने अभी एक बॉल से आपको समझाने की कोशिश की। फिर एक है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ए फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस, शेप चेंज आती है इसलिए शेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे, केवल शेप चेंज हो रही है, दैट इज नॉन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, जो हमने एक बुक लेके आपको उसको समझाने की कोशिश की। समझ गए? दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग स्ट्रेन। It is a ratio of change in dimension upon original dimension. Change in dimension upon original dimensions. और टाइप्स डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन नहीं हुआ करती। जैसे मान लो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इस तरह की चीज़ें आएंगी इसमें। तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर किसी की लेंथ चेंज हो रही है, आपने फोर्स लगाया, लेंथ चेंज हो गई, जैसे कि अगर कोई वायर है, इस पे आपने लोड लगा दिया, ये ओरिजिनल लेंथ थी और डेल्टा एल से लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या कहलाएगी? डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस रेशियो नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब चेंज इन लेंथ भी एक लेंथ होगी और डिवाइड बाई लेंथ है, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होती है, नो यूनिट नो डायमेंशंस। सेकंड लेके चल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे हम लोग केस ये लेके चले थे, पहले V था और ये डेल्टा V से कम हो गया, जो बॉल को हमने कंप्रेस करके आपको दिखाया था, तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अब थर्ड लेके चल रहे हैं हम लोग, और थर्ड क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग इफेक्ट आया करता है, जैसे मैंने एक बुक को रख के आपको दिखाया था, इस तरह देखें आप,
ये फिक्स्ड पार्ट है और इधर से फोर्स लगाया तो हमने आपको दिखाया था कि इसका कुछ शेप चेंज हो जाती है थीटा से, ठीक है। ये साइड लेंथ कहलाएगी, दैट इज एल, और इट इज डिस्प्लेस्ड लेंथ। सो थीटा इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेस्ड लेंथ अपॉन साइड लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। ये साइड लेंथ होगी और ये डिस्प्लेस्ड लेंथ होगी, तो थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल, डिस्प्लेस्ड लेंथ अपॉन साइड लेंथ, डेल्टा एल बाई एल, known as shearing strain. So these are the types of strain. ये strain के टाइप हो गए। क्लियर? strain क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, नो यूनिट। और टाइप्स में क्या क्या थे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट after removal of deforming force body regain its original configuration, that is known as elasticity. लेकिन everything should be in under elastic limit. Beyond the elastic limit अगर आपने उसको खींच लिया, कंप्रेस कर दिया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आएगी। सो एवरीथिंग शुड बी इन इलास्टिक लिमिट। हर एक की एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इधर स्प्रिंग बैलेंस, अगर आप देखें इसकी रीडिंग तो 500 ग्राम तक इसकी इलास्टिक लिमिट है। अगर 500 ग्राम तक इस पर लोड लगाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। अगर आपने 600 ग्राम भी कर दिया तो अब ये बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हो गया। इसकी लिमिट ही कितनी है? 500 ग्राम, और इससे अगर ऊपर ले जाएंगे तो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। तो हर एक बॉडी की अपनी एक लिमिट होती है, दैट इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट। और अंडर द इलास्टिक लिमिट इफ यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रीगेन। बियॉन्ड द इलास्टिक के बाद अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव भी करेंगे तब भी बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आएगी। दैट इज नॉट एज इलास्टिक लिमिट। हर एक चीज़ की लिमिट होती है। देखा नहीं, घर वाले कहते हैं लिमिट में रहो। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट तक हर चीज़ अच्छी होती है, बियॉन्ड द लिमिट हर चीज़ बुरी हो जाती है। तो एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट, ठीक है। तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट कहती है, यानी इलास्टिक बॉडी की लिमिट, जहाँ तक वो अपने को रीगेन कर सके आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक। और अब लेके चल रहे हम लोग हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी। Hooke's law. According to Hooke's law, under the elastic limit, stress directly proportional to strain. Stress directly proportional to strain under the elastic limit, or stress equals to E into strain, where E is the proportionality constant. It is the ratio of stress upon strain, and where E is called elastic constant. Or coefficient of elasticity,
और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? और इसकी डायमेंशन और यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ तो डायमेंशनलेस है। तो यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगी? ml-1 t-2। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और सिंपली अगर बात करें हुक्स लॉ की, तो यह बन जाता है लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जैसे लोड बढ़ाएंगे एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देखो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखो इसका। हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं हुक्स लॉ को। एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ये लोड ले लिया यहां पर, इधर एक्सटेंशन, बॉडी कितनी बढ़ रही है वो, और इधर क्या हो गया? लोड। अब आप देखें, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, अभी बिल्कुल लोड नहीं लगा हुआ है, और आप देखें इसका पॉइंटर 0 पर है, नो एरर, कोई एरर नहीं। देखें आप, ये 0 पे पॉइंटर है, देखो इसका। ठीक है, अब लोड बढ़ा रहे हैं। अब देखो लोड लगा रहे हैं इस पे, ये सारे 500 ये हैं, सारे के सारे 50 ग्राम के हैं सारे। तो 50 ग्राम आ गया था बस पे। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ गई और ठीक इसकी लेंथ बढ़ गई। तो अब लोड लगाया 50 ग्राम और लेंथ बढ़ गई इसकी। अब देखो और लोड लगा रहे हैं। ठीक है, $100 ग्राम कर दिया, फिर देखो उसी प्रोपोर्शन से इसकी लेंथ बढ़ रही है। और लोड बढ़ाया, देखो तो 150 ग्राम रीडिंग भी दिखा रहा है, उसी प्रोपोर्शन से लेंथ भी बढ़ रही है। फिर देखो ऐसी बढ़ गई, और देखो लोड बढ़ गया, देखो, और उसी प्रोपोर्शन से इसकी लेंथ बढ़ रही होगी। एवरीथिंग इज अंडर द इलास्टिक लिमिट्स। ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। अब देखो लोड धीरे धीरे कम करेंगे तो लेंथ कम होना स्टार्ट होती जाएगी। देखो
और वापस जीरो पे ही आएगा, देखना आप। ये कम कर दिया, लेंथ कम हो गई, दो लेंथ कम होती जा रही है। उसी प्रोपोर्शन में लेंथ कम होती जा रही है, लगातार लेंथ कम होती जा रही है। ठीक है, और देखो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगी, एग्जैक्टली आ गई। देखो आप, पॉइंटर जीरो पे आ गया। देखें आप, जितनी लेंथ बढ़ी थी वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच गई। जो एक्सटेंशन आया था यहां तक पहुंच गई थी, और जैसे जैसे लोड कम करते जा रहे हैं वो कम होती जा रही है। देखो इतना कम होगी, फिर ये कम होगी, फिर ये कम होगी, फिर ये कम होगी, और अल्टीमेटली जब हमने जीरो कर दिया तो वापस आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था हुक्स लॉ का कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, और जैसे जैसे लोड बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में इसकी लेंथ बढ़ रही थी, जो हमने अभी आपको करके दिखाया। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो आ रहा है वो यही शो कर रहा है कि हुक्स लॉ स्ट्रिक्टली ओबेड। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था हुक्स लॉ का। क्लियर? तो अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नॉन एज हुक्स लॉ। क्लियर? तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की जो बेहद इंपॉर्टेंट थी। अगले में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडुलस लेके चलेंगे और उनके साथ फिर नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएंगे।